Okay, so this is the chapter we were discussing in our last class, comparing quantities, huh? And we have discussed some of the topics. Now in this class we will be discussing about some remaining topics from the chapter. Like the first topic I am going to discuss here is how to convert the given ratios in percentage. Okay, convert ratios to percentage. How we are going to convert? Okay, this is the first topic we are going to learn. So suppose you are given with any ratio, I will take any ratio here. Suppose I am given with 3:7. Okay, suppose these are the ratios I am given with 3:7, and I have to convert the given ratio into percentage. So how to convert? See, there is a process to convert a given ratio into percentage. फर्स्ट ऐड द रेशियोज नंबर्स गिवन द रेशियो, जो भी रेशियो में ये नंबर्स होते हैं ना, इनको ऐड कर दो. सो 3 + 7 वी विल बी हैविंग 10. ओके, नाउ वी विल फाइंड आउट परसेंटेज फॉर बोथ द पार्ट्स. सी, देयर कैन बी 2 और 3 पार्ट्स इन अ रेशियो, जितने भी हों, मीन्स हम उनका क्या करेंगे, परसेंटेज इंडिविजुअली फाइंड आउट करेंगे. कैसे? सी, आई एम फाइंडिंग फॉर दिस 3, मैं पहले इस वाले के लिए परसेंटेज फाइंड आउट कर रहा हूँ. सो हाउ आई विल बी फाइंडिंग 3, देन डिवाइडेड बाय द टोटल. टोटल, सी द सम ऑफ दीज टू, 3 + 7 कितना आया था, 10, एंड मल्टीप्लाई इट बाय 100. सो यू विल गेट 0 to 0 कैंसिल, 3 × 10 you will get 30%. The same now you will find for 7. So for 7 it will be 7 divided by 10 multiply by 100. So 0 to 0 cancel, 7 10 ja, again it is 70%. So this is how you will convert the given ratio into percentage. इस तरह से तुम लोग कन्वर्ट करोगे. सो वी कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल. हम एक और एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं. सपोज वी आर गिवन विद 2:3:5. ओके, नाउ सपोज दिस इज द रेशियो वी आर गिवन विद. ये रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है, वेयर वी आर गिवन विद द रेशियो ऑफ 3 थिंग्स, 2:3:5, एंड वी नीड टू फाइंड इट इनटू परसेंटेज. हम इसको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में. सो फर्स्ट थिंग आई विल फाइंड द सम. So 2 + 3 5, 5 + 5 10. Again we are getting sum as 10. So for this 2 it will be 2 divided by 10 multiply by 100. So 0 to 0 cancel, 2 × 10 20%. Then 3 divided by 10 into 100, it will be 0 to 0 cancel, 30%. Then 5 divided by 10 into 100, it will be 0 to 0 cancel, 5 10 ja, 50%. So this is the simple process in which you are converting a given ratio to a percentage. इस तरह से तुम लोग find out कर सकते हो. This is the most simplest way to find out. So in ratio we always find for a particular part. So this is our first topic that we wanted to discuss today, to convert ratio to percentage. This is the simple process. Just you have to take the sum of the ratios, then for a particular part, like I am taking this 3. इस 3 के लिए जब मैं find out कर रहा हूँ, for this one I am taking what, 3, then divided by the total of the ratios and multiply by 100. I am getting 30%. Let us move to the next topic. The next topic we are having, that is increased and decreased percentage. Okay, now let's see. Now let's see the, I will send this video. ठीक है, now let's see this one. Now the next topic we are having is increased and decreased percentage. Increased and decreased percentage, really very important topic this one. Percentage, how to find a increased and decreased percentage. See, the first thing, see I'll take an example, simple सा एक example लेता हूँ मैं. Suppose you are going to market and you bought a pen for ₹10. तुमने 10 रुपये में एक पेन खरीदा था. मान लो तुम लास्ट मंथ मार्केट गए, तुमने पेन खरीदा 10 रुपये में, ठीक है. बट नाउ दिस टाइम यू आर विजिटिंग मार्केट एंड द सेम पेन, जो पहले तुमने 10 रुपये में खरीदा था, द सेम पेन नाउ कॉस्ट, अब उस पेन की, सेम पेन की कीमत जो है दैट इज 12 रुपीज. सो इन दिस सिचुएशन जस्ट सी वन थिंग, पहले तुम उसी पेन को 10 रुपये में खरीदते थे, अब वो पेन कितने रुपए में आने लग गया है, 12 में. मीन्स देयर इज अ
increase in amount. So how much is increase here? It is 2 rupees. 2 rupees. See, this is the increased amount. See, whenever we are finding, देखो हमारे पास ये वाला था वो ओरिजिनल अमाउंट, दिस वन वॉज द ओरिजिनल. वाई आई एम सेइंग इट ओरिजिनल अमाउंट? क्योंकि ये जो अमाउंट है ना, ये वो वाला था जिससे हम पहले यूज करते थे, लेकिन अब हमारे पास एक क्या आ गया है, न्यू अमाउंट. ये हमारा न्यू अमाउंट है. देन हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज? सी, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वेदर यू आर फाइंडिंग परसेंटेज इंक्रीज और यू आर फाइंडिंग परसेंटेज डिक्रीज. चाहे तुम इंक्रीज वाला निकालो या डिक्रीज वाला, फॉर्मूला सेम रहेगा. सबसे पहले उसमें ऊपर क्या आएगा, चेंज इन अमाउंट. चेंज इन अमाउंट, जितना चेंज होता है, देन डिवाइड बाय द ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट, एंड मल्टीप्लाई इट विद 100. अब देखो इसको हम कैसे यूज करेंगे. सी, हमारे पास जब हम यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस वाले केस में हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, सो परसेंटेज इंक्रीज वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ मच इज द चेंज इन अमाउंट. अमाउंट के अंदर चेंज कितना आया है, पहले 10 रुपीज था, अब 12 है, दैट मीन्स चेंज इन अमाउंट इज 2 रुपीज. एंड व्हाट इज द ओरिजिनल? ओरिजिनल होता है जो पहले वाला. देखो नया तो बाद में होता है, नया कौन सा होता है, जो इंक्रीज या डिक्रीज होने के बाद. न्यू अमाउंट इज दैट वन विच इज आफ्टर द इंक्रीज और डिक्रीज. बट ओरिजिनल कौन सा था, 10 रुपीज. सो 2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, सो 0 to 0 कैंसिल. व्हाट वी आर हैविंग, 20%. दैट मीन्स व्हाट, जो अमाउंट इंक्रीज हुआ है ना, 10 से 12 बन गया है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 20%. देखो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, एक और एग्जांपल के थ्रू समझना इसको. सपोज आई एम टेकिंग, देखो मैं कहता हूँ कि कोई एक सिटी है, देयर इज अ, मान लो एक सिटी में ना, पहले उसमें पॉपुलेशन थी मान लो 1 लाख. हाँ, दिस वॉज द पॉपुलेशन 1 लाख. पहले 1 लाख पॉपुलेशन थी. नाउ 1 लाख से ना थोड़ा डिक्रीज हो गई, अब उस सिटी में पॉपुलेशन हो गई है 90,000. ठीक है, देखो पहले जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 1 लाख. अब मान लो 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो गई है, अब कितनी हो गई है, 90,000. तो इसका मतलब डिक्रीज, कितना डिक्रीज हुआ है, कितना चेंज हुआ है, 10,000. 10,000. क्योंकि देखो ना पहले 1 लाख थी, अब डिक्रीज हो गया है तो 90, मान लो कुछ लोग वहां से चले गए हैं तो 90,000 बचा, तो डिक्रीज कितना हुआ, 10,000. सो वी आर फाइंडिंग द डिक्रीज परसेंटेज. इस टाइम हम डिक्रीज परसेंटेज कुछ नहीं करना है, अमाउंट चेंज कितना हुआ है, 10,000. ये वाला अमाउंट चेंज हुआ है 10,000. और ओरिजिनल क्या था जो स्टार्टिंग में था, दैट वॉज 1 लाख, 1 लाख, एंड मल्टीप्लाई इट विद 100. सो 2 0 कैंसिल आउट, 1 0, ये वाली 2 zeros कैंसिल, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल. सो व्हाट वी आर रिमेनिंग विद, ओनली 10. सो दैट मीन्स 10% चेंज. ओके, एंड 10% डिक्रीज हुआ है. दिस वन इज 10% डिक्रीज. सो दिस थिंग यू कैन रिमेंबर वेरी इजिली, यू कैन फाइंड आउट इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग. नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग इज प्रॉफिट एंड लॉस. अब इस टॉपिक को तो बहुत अच्छे से समझना, बिकॉज ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस. अब जब भी हम बात करते हैं, वेन एवर वी टॉक अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, वी टॉक अबाउट मार्केट कंडीशन. हम मार्केट की बात करते हैं, क्योंकि कभी भी देखो प्रॉफिट और लॉस ना खाली बैठे हुए तो नहीं होता है. इन मार्केट वी विल विजिट, हम मार्केट जाएंगे. ओके, वी विल गो टू मार्केट, हम मार्केट जाएंगे तो दो चीज़ें होंगी, आइदर वी आर गोइंग टू बाय समथिंग, हम कोई चीज़ या तो खरीदेंगे मार्केट में जाके, या फिर हम क्या करेंगे, वी विल सेल समथिंग. देखो मार्केट में जाने के दो ही पर्पज होते हैं. कुछ लोग वहाँ पे आइटम खरीदने जाते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं वो आइटम बेचने जाते हैं. वेन एवर वी बाय समथिंग, जब हम बाय करते हैं ना, जब हम कुछ चीज़ खरीदते हैं, वी टॉक अबाउट कॉस्ट प्राइस. तो हम किसकी बात करते हैं, कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस कौन सा प्राइस होता है, जिसमें हम कोई चीज़ खरीदते हैं. इफ़ आई एम बाइंग समथिंग, मैं कुछ खरीदने वाला हूँ, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट CP. ओके,
फिर अगर मैं कोई चीज बेचने वाला हूं, देन आई विल टॉक अबाउट व्हाट, सेलिंग प्राइस। ओके, उसको हम बोले जाते हैं सेलिंग प्राइस जब मैं कुछ बेचने वाला हूं। दिस इज नोन एज एसपी। नाउ सी वन थिंग, देखो इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल। सपोज आई वेंट टू अ शॉप, मैं एक शॉप पे जाता हूं एंड आई एम बाइंग, आई बोट अ नोटबुक, मैंने एक नोटबुक खरीदी वहाँ पे जाके फॉर रुपीज 50 रुपीज में मैंने एक नोटबुक खरीद ली। ओके, एंड देन व्हाट आई डिड, देन आई सोल्ड इट, मैंने वो नोटबुक खरीदी एंड आई सोल्ड इट टू माई फ्रेंड, आई सोल्ड इट टू माई फ्रेंड फॉर रुपीज 60। अच्छा एक चीज़ देखो, मैंने वो नोटबुक जो है, मैं जब शॉपकीपर के पास गया मैंने जाके खरीदी थी। खरीदने का मतलब, व्हेन आई एम बाइंग समथिंग, दैट मीन्स दैट इज द कॉस्ट प्राइस आई एम हैविंग। कॉस्ट प्राइस कितनी थी वो मेरे लिए, दैट इज 50 रुपीज। एंड देन आई सोल्ड इट, फिर मैंने उसको बेच दिया। कितने में बेचा, मैंने बेचा 60 रुपीज में। नाउ व्हाट आई सी, अब बहुत सिंपल सी चीज अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, मुझे क्या हुआ है इस कंडीशन में, प्रॉफिट, आई एम हैविंग प्रॉफिट। सी आई एम हैविंग प्रॉफिट, दैट मीन्स देखो तुम लोगों को बहुत इजीली समझ आ गया है कि अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, if selling price is greater than the cost price, that means we are having which condition, we are having profit condition। and how to find profit, हम profit find out कैसे करेंगे, we will subtract cost price from selling price, so 60 minus 50, we are having rupees 10, that means the profit I am having is for rupees 10। देखो सबको बहुत easily ये चीज समझ आ गई होगी, how we can find out the profit। So this is the first thing। Now if I am writing the formula to find the profit, मैं यहाँ पे एक formula लिखने जा रहा हूँ, how I am finding the profit, profit को कैसे find out करना है। okay, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, that I am finding the profit by subtracting cost price from selling price। So I will be writing formula for profit। प्रॉफिट के लिए जो फॉर्मूला आया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अच्छा अब एक चीज सोचो, अब मैं इसको ना थोड़ा सा चेंज करता हूं। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग, मैं कहता हूं मैंने नोटबुक खरीदी तो रुपीज 50 में थी, बट नाउ आई एम सेलिंग इट टू माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को इसको बेच रहा हूं रुपीज 40 में, मैंने उसको बेच दिया 40 रुपीज में। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में मुझे क्या होगा, लॉस। देखो मैंने कॉस्ट प्राइस ज़्यादा दी है और सेलिंग प्राइस कम है। अब की बार कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, मैंने तो 50 रुपये पे किए थे, लेकिन मेरे दोस्त को कितने पे करने पड़े, 40, तो मुझे तो लॉस हुआ ना। सो दैट मीन्स आई विल बी फाइंडिंग लॉस, और लॉस के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर लॉस। लॉस के लिए फॉर्मूला बनेगा, इट विल बी 50 माइनस 40, सो दैट मीन्स रुपीज 10। 10 रुपीज क्या हो गया है, मुझे लॉस हो गया है। ओके, सो दीज आर द सिंपल टर्म्स। कैसे फाइंड आउट करते हैं लॉस, कैसे फाइंड आउट करते हैं प्रॉफिट। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तुमने ज़्यादा अमाउंट में बेचा है तो तुम्हें प्रॉफिट हो जाएगा, कोई चीज़ तुम कम अमाउंट में बेच रहे हो तो तुम्हें लॉस हो जाएगा। ओके, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट थिंग। अब हम अलग चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज, हाँ, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। अब देखो हमने प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना तो सीख लिया है, बट हाउ वी विल फाइंड कि कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ और कितने परसेंट लॉस हुआ, हम लोग ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो फॉर दिस वन, सपोज आई एम टेकिंग, मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। वन एग्जांपल आई एम टेकिंग, देखो मैंने बोला माई फ्रेंड बोट अ कार, उसने एक कार खरीदी। ओके, ही बोट, उसने कार खरीदी कितने रुपए में, रुपीज
3 लाख, ठीक है, हाँ ठीक है 3 लाख, ये आ गया ना 3 लाख, ओके दिस वन। तो उसने कार खरीदी 3 लाख में एंड ही सोल्ड इट, फिर उसने कार को बेच दिया। कितने में बेचा उसने? उसने बेचा 2,79,000, ओके आई टेक इट 2,75,000, ठीक है 2,75,000 और 85, 2,85,000 इतने रुपए में उसने बेच दिया, ठीक है। देखो उसने कार खरीदी कितने में थी? 3 लाख में, सोल्ड कितने में की? 2,85,000। दैट मीन्स व्हाट? देखो कॉस्ट प्राइस जो थी कार की, कॉस्ट प्राइस जिसमें उसने खरीदा कितना था? 3 लाख, 3 लाख। दिस इज द कॉस्ट प्राइस। फिर उसने बेचा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस उसने कितने में बेचा? उसने बेचा 2,85,000। दैट मीन्स व्हाट? अच्छा उसको बताओ इस केस में लॉस हुआ या प्रॉफिट? उसको हुआ लॉस, लॉस्ट हुआ सर। लॉस हुआ ना, Loss. क्योंकि कॉस्ट प्राइस Loss ज़्यादा हुआ, है sir. सेलिंग प्राइस से, तो उसको लॉस हुआ। और कितना लॉस हुआ? वी विल सब्ट्रैक्ट कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, है ना, हमने 15,000. फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ। सो इट इज 15,000, तो उसको लॉस हुआ रुपीज 15,000। अब देखो 15,000। हमें लेकिन फाइंड आउट क्या करना है क्वेश्चन में, लॉस या प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि जब हुआ लॉस है उसको, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अगर लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट निकलेगा, अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट परसेंट होता है, ठीक है। तो हम लॉस या प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखो लॉस परसेंट निकालना हो या फिर प्रॉफिट परसेंट, वी टेक लॉस, हम सबसे पहले लॉस लेते हैं अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। और प्रॉफिट परसेंट भी अगर निकालना है ना, तो प्रॉफिट परसेंट में भी हम क्या करते हैं? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ओके नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, देखो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर सीपी ही क्यों लिया, दोनों में एसपी क्यों नहीं लिया, ठीक है। अब एक चीज सोचो ना, जब भी हम कोई चीज लॉस या प्रॉफिट निकालते हैं वो हमेशा किस पे डिपेंड करता है? कॉस्ट प्राइस पे। देखो क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनल अमाउंट है। मैंने लास्ट जब इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड परसेंटेज सिखाया था, मैंने उसमें बताया था ओरिजिनल अमाउंट के बारे में। मैंने बोला था कि हमेशा चेंज इन अमाउंट को ऊपर लेते हैं, चेंज इन अमाउंट, और नीचे क्या लेते हैं? ओरिजिनल अमाउंट। तो अगर हम ओरिजिनल अमाउंट बोलें तो ओरिजिनल इन दोनों में से क्या होगा? सीपी ओरिजिनल होगा या एसपी ओरिजिनल होगा? सीपी। वाई? बिकॉज वी कांट चेंज इट, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। वी कैन चेंज एसपी, हम एसपी को चेंज कर सकते हैं, सीपी को नहीं। देखो अगर मान लो भाई मैं कहता हूं ये कार मेरी है, अब मैंने खरीदी ये 3 लाख में है, ठीक है, लेकिन बेच तो मैं अपनी मर्जी से सकता हूं ना। आई कैन सेल इट फॉर 3 लाख, आई कैन सेल इट फॉर 2 लाख, मतलब सेलिंग प्राइस तो मेरे ऊपर डिपेंड है ना। तो इसलिए सेलिंग प्राइस जो है उसको हम नहीं लेते हैं, वी टेक कॉस्ट प्राइस इन द डेनोमिनेटर, ठीक है। हमेशा हम कॉस्ट प्राइस को लेते हैं। आइदर वी आर फाइंडिंग लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, कुछ भी फाइंड आउट करें, लॉस परसेंट करें या प्रॉफिट परसेंट, हम क्या लेते हैं? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट अपॉन सीपी। सो यहाँ पे अगर मैं लॉस परसेंट फाइंड आउट करूँगा, आई विल टेक 15,000 देन डिवाइडेड बाय 3 लाख multiply by 100. So now I will cancel 2 0 2 0 cancel out, ये 3 0 3 0 cancel out, 3 1 ja 3 5 ja. So how many percentage loss we are having? 5% loss. This is our answer for the question. So the next topic that we will be discussing about is interest rate and simple interest. Now सिंपल इंटरेस्ट ये तुमने कम ही सुना होगा वैसे अभी तक कि ये सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट, देखो जब हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की, वी टॉक अबाउट 1 और 2 थिंग्स, हम 1-2 चीज़ों की बात करते हैं उसमें। देखो सबसे पहले तो इसको ना बिल्कुल बैंकिंग से जोड़ के चलेंगे, वी विल थिंक अबाउट बैंकिंग टर्म्स। तुम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देयर इज अ पर्सन, एक आदमी है, वो ही वेंट टू बैंक, वो बैंक में जाता है एंड टेक अ लोन ऑफ ₹10,000,
वो वहाँ से जाके ना 10,000 रुपीज़ क्या ले लेता है, लोन, और वो बैंक में बोलता है दैट आई विल पे दिस अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, कितने साल बाद, 2 ईयर्स बाद पे करेगा। अच्छा एक चीज़ सोचो, अगर बैंक उसको ऐसे ही पैसे दे देगा तो बैंक को तो लॉस हो जाएगा। तो बैंक क्या लेता है हमसे, बैंक लेता है इंटरेस्ट, ठीक है। जब हम कोई पैसा लोन पे, हम किसी से भी लोन पे कोई अमाउंट लेते हैं ना, तो हमें साथ में क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है। अब बैंक ने बोला कि ठीक है 10, सर ओके, सो बैंक देखो, उसने जाके बैंक से 10,000 लोन लिया 2 ईयर्स के लिए, लेकिन बैंक ने बोला दैट यू हैव टू पे द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तुम्हें ना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कितना, 5% पर एनम, मतलब एक साल का 5%। तो कैसे, देखो ये सिचुएशन को ध्यान से समझो, उस बंदे ने, दैट पर्सन इज वेंट टू बैंक, वो कितना अमाउंट लेता है बैंक से, 10,000। देखो जब भी हम कोई अमाउंट एज अ लोन लेते हैं ना, उसको बोला जाता है प्रिंसिपल अमाउंट। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, ओके। ये वो स्कूल कॉलेज वाला प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कौन सा होता है, दैट वी टेक फॉर अ लोन। देन द सेकेंड थिंग, फॉर हाउ मच टाइम आई एम टेकिंग दिस वन, कितने टाइम के लिए ले रहे हैं वो, 2 ईयर्स के लिए। एंड देन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बैंक ने लगाया, 5%। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना। कैसे निकालते हैं, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। यहाँ पे P क्या है, प्रिंसिपल, R क्या है, रेट, T क्या है, टाइम, ओके। सो एंड अपॉन 100, सो इट विल बी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 100, ओके। सो इफ यू विल कैंसिल इट आउट, सी 5 to the 10, 10 into 100, 1000 मीन्स 1000 रुपीज। ये क्या है, दिस इज द इंटरेस्ट। देखो 10,000 रुपीज पे लोन कितना था, 10,000 रुपीज के ऊपर 2 ईयर्स के लिए कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 1,000, इतना इंटरेस्ट। तो टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा 2 साल बाद बैंक को, टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, 10,000 तो ये वाले वापस करना है, ये अमाउंट जो हम बैंक से लेके आए थे ये वापस करेंगे, प्लस 1,000 हमें इंटरेस्ट भी देना है। सो 10,000 प्लस 1,000, दैट मीन्स प्रिंसिपल प्लस SI, it will be 10,000 and plus 1,000, so it will be 11,000. This amount I will be paying back. ये अमाउंट वहाँ पे जाके वापस पे करना है, ओके। सो दिस इज द वे टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, ओके। सी एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ से देखो, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। देखो यहाँ पे बोला है कि कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल, टाइम ऑलरेडी गिवन है, टाइम इज 3 ईयर्स, प्रिंसिपल इज ऑलरेडी गिवन एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलरेडी गिवन। सो हाउ मच अमाउंट वी विल बी पेइंग, सो लेट्स सी डिस्कस दिस थिंग। एक बार इसको चेक करते हैं, देखो हाउ मच, P is 1200, so I will take this one, that is I will rub this one first, देखो now in the question, let's see it once again. See in 9th question, principal is 1200, rate is 12% and time is 3 year for the A part. So I will take here principal, that is 1200, प्रिंसिपल जो है 1200 है, रेट कितना है 12% एंड टाइम इज हाउ मच 3 ईयर्स, ओके। सो आई हैव टू फाइंड कि कितना अमाउंट मुझे बाद में पे करना पड़ेगा। तो अमाउंट तो तब निकलेगा ना, पहले हमें SI निकालना पड़ेगा। सो SI कैसे निकलेगा, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाई 100, सो इट विल बी हाउ मच, इट विल बी, सर SI का फुल फॉर्म क्या है सर, सिंपल इंटरेस्ट, 1200 multiply by 12 multiply by 3 upon 100. So 20 cancel out, 12 into 12 144, 144 multiply by 3,
3 4 जा 12, 3 4 जा 12 plus 1 13, 3 1 जा 4 3 2. That means see, on this 1200 principal, ये जो 1200 principal था ना, how much interest I will be paying, मैं interest कितना पे करूँगा 430. That means 432. That means total amount, जो amount मुझे 3 years बाद बैंक को वापस करना है, कितना करना है 1200 plus 432. That means it will be 1632 rupees. This is the amount I will be paying back to the bank. Just discuss this one. Third question of the exercise 8.3. I'll just delete all these things first. मैं साइज थोड़ा इंक्रीज करता हूँ क्वेश्चन का ताकि तुम लोगों को इजीली दिखेगा. Okay, this is the question we are having. See, the kind of question we have already discussed. This is third question of your exercise. The population of a city decreased from 25,000 to 24,500. See, original population, जो पहले population थी वो कितनी थी originally? It was 25,000. Then after decrease, new population become 24,500. So what is the change? कितना change आया उसमें 500. Okay. Fine. So what is the percentage? Because it is decreasing. देखो decrease हुआ है तो we are finding out percentage decrease. It will be 500 divided by, see, this is the changed, this is the difference, then divided by the original one, 25,000 multiply by 100. So 2 0 they will cancel out, 1 0 this will cancel out, 5 10 ja 50, 5 5 ja 25, 5 1 ja 5 2 ja. So how much is the decrease percentage? 2%. So this is our answer. This is the way you will be calculating. ये हम discuss कर चुके हैं. This is question number 4. अरुण bought a car for rupees 3,50,000. देखो उसने जो कार खरीदी है वो कितने में खरीदी 3,50,000. The next year price went up to, अगले साल प्राइस बढ़ गया है, कितना प्राइस हो गया 3,70,000. सो व्हाट वी विल बी फाइंडिंग, क्या फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज इंक्रीज. इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. 370 में से 350 माइनस करेंगे, चेंज कितना आएगा 20,000. फिर 20,000 को डिवाइड करेंगे किससे 3,50,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 100. यू विल गेट योर आंसर. योर क्वेश्चन नंबर 5. सी दिस वन. मैं इसको डिलीट करता हूँ पहले. Okay, this is our question number 5. Now just see this one. The population, oh sorry, this is not question number 5, this one. This we have already done ना, वो तो हम कर चुके हैं. हाँ ये है. हाँ ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. आई बॉट अ टीवी फॉर रुपीज़ 10,000. देखो मैंने टीवी खरीदा, दैट मीन्स इट इज़ गिवन एज कोस्ट प्राइस, क्योंकि कोई चीज़ खरीदते हैं तो कोस्ट प्राइस. हाउ मच इज़ द कोस्ट प्राइस, दैट इज़ 10,000 रुपीज़. I bought a TV for 10,000. Sell it at a profit of 20%. बेचा कितने में, profit percentage is given. Profit percentage is also given. That is 20. देख लो 20%, ये क्या है profit percent. I am given with cost price. I am given with profit percent. Now how much money do I get for it? जब मैंने उसको बेच दिया है तो मुझे कितना अमाउंट मिलेगा. That means I will be finding the selling price. तो मुझे selling price find out करना है. अच्छा देखो मेरे पास जो है प्रॉफिट परसेंट है और कॉस्ट प्राइस है. मैंने अभी तुम लोगों के साथ एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, इसीलिए मैंने बोला था वो फॉर्मूला रिमेंबर करना उसको. प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100 है ना, बताया था मैंने फॉर्मूला.
अब इसमें देखो, इस वाले फॉर्मूले में प्रॉफिट परसेंट मेरे पास ऑलरेडी गिवन है 20, प्रॉफिट परसेंट है ना, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करूँगा, प्रॉफिट परसेंट की जगह पे मैं क्या रख रहा हूँ 20 इक्वल टू, क्या मुझे प्रॉफिट पता है? नो, सो आई विल राइट इट एज इट इज। प्रॉफिट क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। कॉस्ट प्राइस, क्या मुझे कॉस्ट प्राइस पता है? यस, इट इज़ 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, so 20 they will cancel out. Now this 100, it is in division na, so it will, if it will go there, it will be in multiplication. So 20 multiply by 100 equal to, सामने क्या बचा? सिर्फ प्रॉफिट। Now how much is the profit I am getting? कितना प्रॉफिट हुआ मुझे? प्रॉफिट हुआ है 20 into 100, 2000. This is the profit I am having, 2000 rupees. So how I will be finding this selling price? Selling price कैसे find out करूँगा? If I will add profit into cost price, cost price में add कर देंगे CP plus profit। अब ये क्यों किया? क्योंकि मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट निकलता है सेलिंग प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस। अब देखो, मुझे प्रॉफिट पता है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस को मैं इस साइड लेके आ रहा हूँ, मीन्स कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट करने से देखो इट विल बी 10,000 प्लस 2,000, सो दैट मीन्स रुपीज 12,000। दैट मीन्स वो जो टीवी था मैंने कितने में बेचा? 12,000 में। एंड सी देखो, तभी तो मुझे प्रॉफिट 2,000 रुपीज़ का होगा। अगर देखो मैंने टीवी को ख़रीदा कितने में था? 10,000 में। मैंने उसको बेचा कितने में है? 12,000 में। और प्रॉफिट कितना हुआ? 2,000। सो दीज आर द वेज यू हैव टू रिमेंबर सम फॉर्मूले टू कैलकुलेट। थोड़ा सा फॉर्मूले ध्यान में रखना है। ओके, नाउ सी दिस वन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ सी, Juhi sells a washing machine for rupees 13,500. Now this time we are given with the selling price. Selling price is how much? It is given 13,500. And she loses 20%. How much she lost? She lost 20% on it. है ना, उसको लॉस हुआ है। She has a loss of 20%. वट वॉज द प्राइस एट विच सी बोट? तो उसने कितने में खरीदा होगा ये? वी हैव टू फाइंड आउट वट? कॉस्ट प्राइस। सी, वेन एवर यू आर डूइंग दीज क्वेश्चन ना, जब भी तुम लोग ये कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट, ये वाले क्वेश्चन करते हो, तुम लोगों को सबसे ज़रूरी जो काम है वो पता होना चाहिए। क्या तुम्हें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? द क्वेश्चन इज गिवन विद द सेलिंग प्राइस बिकॉज सी इज सेलिंग अ वॉशिंग मशीन। ओके, एंड कितने में बेचा उसने? 13,500। हाउ मच सी लॉस्ट ऑन इट? उसे कितना परसेंट लॉस हुआ? 20%। दैट इज द लॉस सी इज हैविंग। हाँ, ये उसको लॉस हुआ है 20%। एंड वी नीड टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस। हमें कॉस्ट प्राइस, क्योंकि इसने पूछा है दैट फॉर हाउ मच सी हैज बॉट इट। सो हाउ वी विल बी फाइंडिंग द कॉस्ट प्राइस? इज देयर एनी फॉर्मूला दैट कनेक्ट सेलिंग प्राइस, लॉस एंड कॉस्ट प्राइस? वैसे फॉर्मूला तो होता है, मैं तुम लोगों को एक डायरेक्ट फॉर्मूला अगर बताऊं, दैट फॉर्मूला इज कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। देखो, इस फॉर्मूले से पहले मैं तुम्हें आंसर बताता हूं कैसे निकलेगा। कॉस्ट प्राइस विल बी, सेलिंग प्राइस कितना है? 13,500 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 माइनस लॉस, यानी कि 100 माइनस 20, सो इट विल बी हाउ मच? 13,500 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 80, सो 0 to 0 कैंसिल, 2 5 जा 8, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, नाउ 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 0, नाउ 2 1 जा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, then 2 7 जा 14, 2 5 जा 10. You will cancel out everything. Then 5 multiply by this 3 3 7 5. 5 5 जा 25, 2 carry, 5 7 जा 35 plus 2 37, 3 carry,
5 3 जा 15, 15 प्लस 3 18, 1 कैरी, देन 5 3 जा 15 प्लस 1 16. सो दैट मीन्स व्हाट, उसने जो ये टीवी है ना खरीदा कितने में था, 16,875. दिस अमाउंट सी हैज बॉट इट, इतने रुपए में उसने खरीदा था 16,875 और कितने में बेचा 13,500. तो लॉस तो उसे हुआ है, कितना लॉस हुआ 20%. दिस इज वन वे टू कैलकुलेट दिस. वी हैव कैलकुलेटेड बाय यूजिंग अ सिंपल फॉर्मूला. देखो मैंने सिंपल ये फॉर्मूला यूज किया, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट. बट अगर तुम लोगों को ये फॉर्मूला ना पता हो तब तुम लोग कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए देखो व्हाट यू विल डू. मान लो ये फॉर्मूला तुम लोगों को नहीं आता है, मैं ये सोच लेता हूँ. हम लोगों ने कनेक्ट किया था किसको, लॉस परसेंट को हमने कनेक्ट किया था लॉस डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100. क्या हमने इसको कनेक्ट किया था ऐसे, यस. ठीक है, फिर हमने एक और चीज़ कनेक्ट की थी कि लॉस कैसे फाइंड आउट होता है. लॉस फाइंड आउट होता है सीपी माइनस एसपी, जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा अमाउंट में खरीदते हैं और कम अमाउंट में बेच देते हैं. ओके, सो दैट मीन्स व्हाट. अब देखो अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, मैं ये फॉर्मूला तुम सबके साथ शेयर कर चुका हूँ, अगर मैं उस फॉर्मूले में लॉस परसेंट को तो एज इट इज़ रखूँ और ये जो लॉस है ना यहाँ पे, इस लॉस की जगह पे मैं क्या रख रहा हूँ, सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100. देखो ये एक नया फॉर्मूला बन जाता है. तो इस फॉर्मूले से अब हम क्या कर सकते हैं, देखो लॉस परसेंट हमारे पास कितना है 20, तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 20 इक्वल टू सी पी हम लोगों को फाइंड आउट करना है माइनस एस पी हमें पता है 13,500 अपॉन सी पी फिर से फाइंड आउट होगा. ठीक है, एंड आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 100. देखो अब मैं इस सी पी को 20 से मल्टीप्लाई करूँगा, 20 इंटू सी पी 20 सी पी इक्वल टू सी पी इंटू 100 100 सी पी माइनस 13,500 इंटू 100, इट विल बी 1350,000. अब देखो ये जो 20 सी पी है ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस. देखो 20 सी पी इधर आके माइनस, सो 100 सी पी में से 20 सी पी जाएगा, कितना बचेगा, इट विल बी 80 सी पी इक्वल टू ये वाला उस साइड चला जाएगा पॉजिटिव 1350,000. सो सी पी विल बी इक्वल टू वट 1350,000 डिवाइडेड बाय 80. सो 0 to 0 कैंसिल, इट विल बी 8 से इसको डिवाइड कर दो पूरे को, तो कितना आएगा 8 1 जा 8, फिर 8 6 जा 48. ओके, क्योंकि ये 5 5 हो जाएगा ना, कितना हुआ 8 1 जा 8, हाँ 5 5, फिर 7 0, फिर ये आ जाएगा 8 8 जा 64, देन 1 5 and 0 16850. Is it 8 1 ja 8, then 5 5, 8 6 ja 48, 7 0, 8 8 ja 64, 4 0, 8 4 ja 8 5 ja 40, and then your answer will be this one. The same answer you are getting by using the formula, or you are not using the formula. You can do it by any way. Let's write some formulas here. प्रॉफिट एंड लॉस वाले सब फॉर्मूले लिखूंगा मैं यहाँ पे, जितने भी हमारे पास पॉसिबल फॉर्मूले हैं ना सब लिख देता हूँ, ताकि तुम लोगों को क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करने में सिंपल आ जाएगी. ठीक है, वी आर राइटिंग हियर फॉर्मूले फॉर प्रॉफिट एंड लॉस. फर्स्ट थिंग, इफ़ वी आर फाइंडिंग प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करना है, एस पी माइनस सी पी. ओके, इफ़ वी हैव टू फाइंड लॉस कैसे फाइंड आउट होगा, सी पी माइनस एस पी. अगर हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सी पी मल्टीप्लाई बाय 100. अगर हम लोगों को लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है, लॉस डिवाइडेड बाय सी पी मल्टीप्लाई बाय 100. देन अगर हम लोगों को सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है एंड वी आर गिवन विद कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस देन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन
100. देन अगर हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है एंड वी आर गिवन विद कॉस्ट प्राइस एंड लॉस परसेंट, सो CP into 100 minus loss percent upon 100. If we need to find out cost price, then selling price multiply by 100 upon 100 plus profit percent, and CP equals to SP multiply by 100 upon 100 minus loss percent. See, these are the formulas. If you will use all these formulae, na, you will not get any trouble with profit and loss. Any question you will be able to solve. कुछ भी solve कर सकते हो तुम. Just you need to remember all these formulae कि कैसे इनको apply करना है. Because in every question you will see at least 2 things you will be given with. 2 चीज़ें वो लोग तुम लोगों को देंगे. So one thing you can easily find out.